everyone, a very logical day to all of you, and this is the discussion of the first editorial of the Indian Express, January 29, and the heading is Classroom Success. From this heading, we can at least understand that yes, the article will be in a positive tone. A positive में optimism होता है, sanguine होता है, कुछ भी हो सकता है, पर एटलीस्ट पॉजिटिव तो होगा। क्यों? क्योंकि ये सक्सेस से रिलेटेड है। दूसरा, ये एजुकेशन बेस्ड होगा कुछ। So that means what we can infer from this is this article would be something that is based on education. Maybe some changes, something that the government has started or something that the people have done, and it shows a glimmer of hope there. It is something that is positive. एटलीस्ट इतना समझ में आ जाता है क्लासरूम सक्सेस से लेके। तो एजुकेशन बेस्ड है और पॉजिटिव है, देखते हैं आखिर है क्या इसमें। So during the COVID-19 pandemic, India had one of the longest school closures in the world. Digital learning locked vast numbers of underprivileged school children out of the classroom, and online classes struggled to replace the experience and quality of teaching in a physical classroom. दो चीजें इसने यहाँ पे दे दी, दो प्रॉब्लम्स जो हमने फेस किए कोविड में के टाइम पे, और उसके बाद एक था लॉकडाउन नहीं था, यहाँ पे लॉक आउट हुआ है। लॉक आउट का मतलब गेट बंद थे क्लास इसके स्कूल्स के, तो बच्चे आ नहीं पाए। इन अ वे मतलब स्कूल्स बंद थे, तो दैट इज क्लोजर, राइट। सेकेंड, अब स्कूल्स बंद थे तो ऑनलाइन पे चले गए, तो ऑनलाइन में क्योंकि आदत नहीं थी तो वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे। सो दीज आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड हो गया वो, right? So one is that the people like the underprivileged children mainly, they struggled to replace the experience, यहाँ पे online classes में struggle था, और दूसरा locked out. So last year's economic survey pointed out that the gap between class standards and learning levels has widened. ठीक है, लास्ट ईयर का जो सर्वे था उसने क्या कहा? उसने कहा था कि जो गैप है वो वाइड हो गई है। किसके बीच में? क्लास स्टैंडर्ड्स और उनका लर्निंग लेवल। 8th क्लास का बच्चा या उसको क्या क्या आना चाहिए, वो दैट डज नॉट फिट देयर, राइट। तो उसे क्या आ रहा है, जो कि 6th क्लास के बच्चे को आना चाहिए उतना आ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम। Now, since the pandemic, it noted that improving learning outcomes and undoing the COVID-induced learning loss is more urgent than ever. Undoing the learning loss का मतलब हो गया है कि जो प्रॉब्लम हो गई है, लर्निंग लॉस जितना हुआ है उसे वापस सही तरीके से लाया जाए या सही लेवल पे लाया जाए जो पहले था, और ये सबसे बड़ी अर्जेंट नीड है। The survey, however, struck a note of optimism. See, there is optimism shown here. Education sector is bustling with the across-the-board transformation led by the NEP 2020, which is expected to yield foundational literacy and numeracy, FLN, that is, skills for every child passing the third standard in the near future. तो थर्ड स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए कितना है FLN का मतलब हो गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होनी ही चाहिए, नंबर्स उन्हें आने चाहिए, और लिटरेसी पढ़ना लिखना भी होना चाहिए। ये तो डेफिनेट है ही सही, और ये आया कहाँ से है? एनईपी 2020 से, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स थी उसका एटलीस्ट एक चीज थी पॉजिटिव, कि यहाँ पे हमने पहले से ही एनईपी 2020 तैयार करके रख ली थी, राइट। सो द लेटेस्ट ऐसे रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे shows that this optimism was not misplaced. ठीक है, तो एनुअल जो इसकी है पोजीशन है एजुकेशनल रिसर्च पे, ठीक है, that is the report. So it shows that classrooms have not only recovered from the disruption caused by the public health emergency in several respects, foundation skills of primary and secondary level school children today is much better than even that of their counterparts in the year just before the pandemic. ठीक है, तो 2019 में पैंडेमिक के पहले जो था इनका लेवल, उससे कहीं बेटर अभी वाला लेवल हो गया है। सो ऑल दिस इज the positive point. So in the previous paragraph, they came up with the problem here कि क्या था. Then they came up with this optimism वाला sentence that yes, timely problem जो भी था problem, but the timely implementation of this 2020 NEP was a ray of hope here, right? And this is
What positive outcome was there? What is even more heartening? Again a positive thing. Heartening यानी जो दिल को अच्छा लगे या जो positive है, इसलिए is that is government schools are at the forefront of this recovery. तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऐसे ही है, पब्लिक स्कूल्स ऐसे ही हैं, प्राइवेट स्कूल्स हमेशा बेटर होते हैं. तो ऑथर ने एक बात कही कि देखो ये बात भी अच्छी है, पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इस रिकवरी में आगे आ गए हैं. दैट इज इट अ पॉजिटिव पॉइंट. A large chunk of the credit, as the essay report points out, should go to the new education policy's thrust on improving the foundational learning skills. ये उन्होंने पहले ही कहा था. NEP हमने यहाँ पे देखा, NEP 2020 का काम किया था कि थर्ड स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो तो होनी ही चाहिए. और यहीं पर उसने कहा कि यही रीजन था कि गवर्नमेंट स्कूल्स इस बात में काफी आगे आ गए हैं रिकवरी की बात पर. They are at the forefront. It notes that those states have adapted the NEP's prescriptions in different ways. All of them have adopted the policy's teacher-centric approach. ये बात सही है कि जो पॉलिसी है उसने थोड़ा सा ज्यादा फोकस टीचर पे भी दिया है, क्योंकि टीचर को अगर वेल ट्रेन किया जाएगा तो ही बच्चे समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, राइट. तो ये जो पॉलिसी थी एनईपी 2020, इट वाज अ टीचर सेंट्रिक अप्रोच. And though the states have come up with a different adaptation of all this policy, but then they have at least picked up this one point that हाँ ये होना चाहिए हमारा टीचर सेंट्रिक अप्रोच. Large scale rollout of teacher training programs on foundation skills shows a national commitment towards addressing a long standing deficit. ठीक है, addressing a long standing deficit का मतलब हो गया कि ये प्रॉब्लम थी जो कई सारे वर्षों से चल आ रही थी कि टीचर्स को किस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. दैट वाज द पॉइंट. द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर अभी फोकस किया गया है एनईपी 2020 में, एंड दिस इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स नाउ. So the training is slowly leaving a mark on the ways teachers relate to the students in classroom. So slowly leaving a mark means it is having an effect, a positive one in this case. So the ASA survey has found that many teachers are now empathetic to the specific needs of students in the early years of school. Empathetic means now they can understand what those children would need in the early years. However, as ASA 2024 indicates, educating educators is still a work in progress. दे कैनॉट बी अ फिक्स. देखो इससे वित्तीय से स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच गए कि हाँ हमारी पूरी ट्रेनिंग हो गई है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अच्छे से चल रहे हैं, एजुकेशन बहुत बढ़िया हो गया. नहीं, इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, चलता आ रहा है, ये ग्रेजुअल है. They cannot be a fixed pedagogical template to teach children in all schools, even if they are in the same grade. A fact underlined by the NEP as well. Fine. So it is like it is not that one size fits all. ऐसा नहीं है. तो ये कस्टमाइज होगा, किसी एक स्टेट में किसी एक स्टैंडर्ड के बच्चों को कुछ और चाहिए होगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है. So today, teachers seem to have limited opportunities to address the classroom specific challenges. Classroom specific means, as he said, that it is not a fixed one. तो टीचर्स को ही समझ में आना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से या बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनके कैलिबर के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से किस तरीके से पढ़ाना है. दैट इज द पॉइंट. So the ASA report therefore underlines the importance of post-training support to teachers. Crucially, decisions on what and how to teach are still based primarily on syllabus completion. Right? What to teach and how to teach will depend on the syllabus. So resolving the inherent contradiction between ensuring universal FLN and syllabus completion. ये syllabus completion है. ठीक है. और एक्चुअली में क्या चाहिए, उनकी हमें लिटरेसी और न्यूमरेसी चाहिए फाउंडेशनल वाली, कितना तो बच्चों को आना ही चाहिए. तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन इसमें. Ensuring universal FLN and syllabus completion is a question that the system has yet to reckon with in a systematic way. Yet to reckon का मतलब होता है अभी भी इसका हिसाब करना है अच्छे से कि देखो क्या क्या हमें चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन किस तरीके से करना है, और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किस तरीके से उन बच्चों में आएगी. That is what they still need to calculate and understand. This is what the ASA reports points out. So now coming up with the main idea here. So if I take the same passages, paragraphs, you can see that they are logged vast numbers of children out. ये पहला काम था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे challenges लिखा था. ठीक है, तो एक वो स्ट्रगल कर रहे हैं,
or gap increased है, ठीक है. So these are the problems that they are facing and one of them is the gap that has widened. ठीक है, ये ज्यादा हो गई है. Then next point was optimism. क्या ठीक है, तो इसने ऑथर ने क्या किया है, ये बैकग्राउंड दिया कि देखो पोस्ट कोविड क्या क्या हालत थी और अब गैप जो है वाइडन हो गई थी वैसे तो, लेकिन अभी ऑप्टिमिज्म क्या है कि एनईपी 2020 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, तो व्हाट देयर फोकस इज, राइट. सो दिस ऑप्टिमिज्म वाज नॉट मिसप्लेस्ड, मतलब ये सही ऑप्टिमिज्म है, ऐसी कोई गलत नहीं है, राइट. So again the positive point, again another positive point. So the rest of the paragraph is giving you the optimism only, right? And then it shows that yes, all the states, whatever they are adapting and however they are adopting, right? But then at least it shows that yes, there is a national commitment. तो पूरा देश इस पे लगा हुआ है कि FLN तो होना ही चाहिए. अब उस FLN को किस तरीके से हम ग्लोबल लेवल तक लेके जाते हैं, that still remains to be seen, right? And then what they said is because of this teachers training, which was an important point of the NEP 2020. The teachers have now started being empathetic, at least they can understand what the students are or what their needs are. Okay. And then he comes up with, see, there are still limited opportunities for the teachers. तो पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, ये एसर रिपोर्ट की ही सारी बातें हैं. और अभी भी उन्होंने कहा है कि कुछ सिस्टमैटिक वे से दे स्टिल नीड टू फ्रेम द थिंग्स अहेड, राइट. So as I said, not a very difficult passage. ACER survey shows foundational learning skills have covered post-pandemic, have ठीक है, post-pandemic ये skills सही हो गई हैं according to NEP 2020 and according to the ACER, or because of the NEP 2020 and according to the ACER. And that is cause for cheer and redoubling effort. Cause for cheer का मतलब हो गया, positive तो हो गया, redoubling effort is yet to be done वाली बात है. अभी और आगे बढ़ना है तो अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है. हम आगे तभी बढ़ सकते हैं ना जब हम कुछ कर सकेंगे. So now coming to the vocab part. Now again be ready with your notebooks and the pen also, of course, to note them down. So a few phrasal verbs I'm giving you again. So now see, locked something out of somewhere. तो यहाँ पे है लॉक आउट. हम अक्सर पैंडेमिक के हिसाब से लॉकडाउन सुनते हैं, है ना, तो लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे बच्चों को बाहर रखा गया है ना, तो दे हैव बीन लॉक्ड आउट, राइट. सो दिस बिकम्स द फ्रेज, राइट. यहाँ पे फ्रेज बनता है टू स्ट्राइक अ नोट ऑफ समथिंग. तो दिस स्ट्रक अ नोट, एज आई सेड दैट डे, कि फ्रेजल वर्ब्स जो है वो हम आराम से टेंसेस चेंज कर सकते हैं उसमें. तो स्ट्राइक अ नोट ऑफ, ऑलवेज राइट द फ्रेजल वर्ब्स इन अ प्रेजेंट फॉर्मेशन, ठीक है. सो इट इज बसलिंग विथ. बसलिंग का मतलब होता है वेरी बिजी होना. देखो बिजी, बज, जहां पे बहुत सारी आवाज आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो थ्राइव हो सकता है, थ्रॉन्ग हो सकते हैं. थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड. टू यील्ड, टू यील्ड, फाउंडेशन लिटरेसी, यील्ड इज टू गिव, ठीक है. अब यील्डिंग का एक और मीनिंग होता है. यील्डिंग का मीनिंग होता है सबमिसिव होना. वो वही हो गया इसका टू गिव इन, मतलब किसी और की बात मान लेना. टू गिव इन इज टू बी सबमिसिव. You let others dominate, right? You don't come up with your own stand, with your own opinion. आपने, आपको जो बात कही गई है आप आसानी से मान लेते हो, ठीक है. मन ही एग्री नहीं करते हो फिर भी मान लेते हो बात, वही काम करते हो. तो दैट इज योर बीइंग सबमिसिव. और यील्ड तो हम क्रॉप्स के लिए भी कर लेते हैं ना. दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ यील्ड, राइट. द क्रॉप्स, जो कल्टीवेशन जितना होता है, जितना मिलता है खेतों से, वो यील्ड होता है, क्रॉप यील्ड बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेज बनता है टू यील्ड, विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड, मतलब टू प्रोवाइड, ठीक है. क्या मिलेगा उससे? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो ये फ्रेज बन जाता है एक्सपेक्टेड टू यील्ड. Not misplaced becomes a figure of speech that is using two negatives together, that is lithos. ये पहले भी मैं दे चुकी हूं तुम्हें, तो you can still note them down as your figure of speech. Another phrasal verb at the forefront of.
ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे और कोई preposition नहीं आएगा, at और of तो आएगा इसी से, at the forefront of something, right? मतलब आगे ही रहना किसी भी काम में. A chunk of किसी का एक टुकड़ा होना, that is a large chunk of the credit. You thrust on, right? So thrust means a push, force, you can say, on improving something. So there was a thrust on. अब देखो, it will be followed by a verb ing. Thrust on doing something होता है. ठीक है, तो जब आप फ्रेजल वर्ब्स लिखते हैं ना, तो ये भी समझ में आना चाहिए कि किसके पीछे एक नाउन लगेगा और किसके पीछे एक वर्ब लगेगा. ठीक है, तो दिस इज अ थ्रस्ट ऑन डूइंग समथिंग, तो यहाँ पे हमेशा हमारे पास आईएनजी फॉर्मेशन लगेगा. तो थ्रस्ट ऑन समथिंग नाउन हो सकता है, थ्रस्ट ऑन डूइंग समथिंग ये भी हो सकता है. देन अडेप्टेड एंड अडॉप्टेड. ठीक है, ये है कंफ्यूजिंग वर्ड्स. अब आप लिख सकते हो अडेप्ट करना मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना. अडेप्टेशंस होते हैं ना, चेंज, मॉडिफाई, ऑल्टर, राइट, टू फिट समथिंग, ये होता है मॉडिफिकेशन वाला. ये एक वर्ड. दूसरा वर्ड होता है अडॉप्ट. अडॉप्ट मीन्स टू इम्प्लीमेंट, टू टेक इन यूज, ये हो जाएगा. यू अडॉप्ट समबडी, इम्प्लीमेंट के हिसाब से. एक और वर्ड मैं तुम्हें दे रही हूं, दैट इज अनदर वर्ड इज अडेप्ट, राइट. तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगर हम लिख रहे हैं तो ये तीनों लिख लेंगे. तो यू आर अडेप्ट समथिंग, दैट मीन्स स्किल्ड. इफ अडेप्ट इज स्किल्ड, टैलेंटेड, adroit, and then you have the word dexterous. ठीक है, okay. Then we come out with roll out of something on something. या ध्यान से देखेंगे, यहां से आपके दो बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स. एक रोल आउट ऑफ, ये रिप्लेस कर लो आप समथिंग से. तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये हो गया समथिंग. तो रोल आउट ऑफ समथिंग ऑन, तो roll out on of something on something, that becomes your complete phrasal verb. ठीक है, commitment towards doing something, again commitment towards something और commitment towards doing something दोनों हो सकता है. ठीक है, अब मैं हमेशा समथिंग और अगर someone होता तो commitment towards someone हो जाएगा, किसी के लिए या किसी से आपने कुछ कमिटमेंट की है. ठीक है, मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो फिर डैश 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 डैश. तो यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स देन. ठीक है, रिलेट टू, हाँ, यू कैन रिलेट टू द हाफ डायलॉग दैट आई गिव. तो रिलेट टू समवन. एम्पथेटिक टू, that means you are able to understand what the other person is going through, right? In his shoes और इन somebody else's shoes, उसे कह देंगे ना आप, अगर मेरी जगह होते तो मैं क्या किस दौर से गुजर रहा हूं आप ये समझ सकोगे. ठीक है ना, इन दिस वे. सो द टीचर्स आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड what those children are going through coming from such underprivileged families. ठीक है, कम ऑन. अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग समथिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग टू समवन, ये आपका फ्रेज बनता है. तो दो बनते हैं इसे फ्रेजल वर्ब, इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग एंड इंपॉर्टेंस टू समवन. तो पूरा बन गया हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग टू समवन. सो द कंप्लीट गेम जैसे बोलते हैं ना, मैं खेल है पूरा शब्दों का. तो ये शब्द होते हैं ऑफ एंड टू, वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं, नाउन के साथ जुड़ जाते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स बना लेते हैं. और अगर तुमने शुरू से काफी, मतलब अपने ये फ्रेजल वर्ब्स मैंने कई बार दिए हैं, अगर तुमने वो लिखना शुरू कर लिया था तो यू वुड हैव एटलीस्ट आई थिंक सो 30 to 40 तो आराम से हो गए होंगे आपके फ्रेजल वर्ब्स. अब नहीं तो अभी से शुरू कर दो, तो आगे तो तुम्हारे पास काफी सारे आते जाएंगे. सो नो मैटर विच टेस्ट यू आर focusing on, no matter what you are doing, because phrasal verbs are like in thousands.
ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही समझ में आने लगते हैं। आप उसका रटना नहीं लगा सकते हो। रट्टा तो खैर आप किसी वर्ड का भी नहीं लगा सकते हो, बिकॉज यू डोंट लर्न द वर्ड्स, यू ओनली like understand the words. If you understand them, you'll be able to use them well. So decisions on something and based on something. Then to reckon with again becomes a phrasal verb. That means you need to calculate, you need to compute it. ठीक है, जैसे कंप्यूटर काम करता है ना, तो वो पूरा हिसाब लगा के फिर समझता है कि चलो आगे क्या करना है, तो वही काम उसको कहते हैं रेकन, राइट? दैट्स ऑल। नाउ व्हाट टू रीड में आपके पास है रिकवरी एंड मोर। द जेंडर बैटल ग्राउंड, ये उन लोगों के लिए है जो अभी यूएस यूके से वापस आएंगे, या किसको वहां पे रखना है, किसको वापस लाना है। ये जो पिछले कुछ दिनों से ना, वी वर जस्ट रीडिंग अबाउट यूएस एंड यूके एंड डोनाल्ड ट्रम्प एंड ऑल, what he has done as soon as he has been into the position, right? So read a little more on this. So read this article, and what lies beneath is actually the third article, the third editorial on the same page, जो है इंडियन एक्सप्रेस का। लेकिन ये एक इंटरप्रिटेटिव स्टाइल है, राइट? सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट स्टाइल। दे हैव गॉट अ पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने कई सारे मतलब अपना थिंकिंग लिखा है कि ओके फाइन, इसे कैसे समझा जाए, या इसके अंडर में क्या है, इसके बीनीथ क्या है, राइट? तो व्हाट लाइज बीनीथ, जस्ट रीड दिस। इट्स अ शॉर्ट आर्टिकल, थर्ड वाला वैसे भी छोटा सा होता है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, ठीक है? सो रीड दिस, ये एक अलग ही जॉनर हो जाएगा आपका, ये आर्ट का हो जाएगा आपके पास, ठीक? ये हो जाएगा आपका जियो पॉलिटिकल बोल दो, इकोनॉमिक बोल दो, कुछ भी। What is happening and what will be the repercussions, or what will be the consequences there. And this a recovery and more. So this recovery is still related to what we just discussed about education, and more is what needs to be done still. ठीक है, सो एक ये रिलेटेड आर्टिकल रहेगा आपके पास। इट्स अ लेंदी वन, सो यू डू इट। दिस वन इज समथिंग दैट वी हैव बीन रीडिंग इन द प्रीवियस वीक, एंड दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू अ डिफरेंट जॉनर नाउ, राइट? एटलीस्ट ये 3 आर्टिकल्स पढ़ लो, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स रहेंगे, दिमाग भी चलेगा थोड़ा सा और। So that's all for today, and yes, stay logical and stay positive, and be logical and be positive always. So thank you and see you soon.